Oh, hello there. Happy New Year. I hope, wish, and pray that 2023 is treating you really well. And without wasting any further minute, let's just straight into today's video topic, that is contraceptive option for a couple who is having a child or children. Starting with the first type of method, that is what we called as a barrier contraception. अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं है, बट आई बेट ये आप सबने सुना है. Yes, I'm talking about male condoms and female condoms. Few weeks ago, I have recorded a specific video regarding the contraceptive options for newlyweds and singles. तो अगर आपने वो नहीं देखा, then I highly recommend it that you see it first, linking in the description box also. So as we are talking, condoms are widely available and they are effective method of contraception. The effectiveness lasts for up to 96 to 97% if you use it properly. Now you might be wondering कि ये effectively क्या होता है, right? I am putting so much pressure on effectiveness because कि अगर आप सही तरीके से कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करोगे, then the effectiveness of condom falls from 96 to 97% of effectiveness to 85 to 86%. So there is a way of storing a condom properly, tearing it the outer wrapper properly, putting it over a penis properly to make a proper room at the ejaculation on the tip, and then you have to discard it properly so you won't land up into the emergency pregnancy kind of a situation. Now talking about the second type of contraceptive methods for a couple who have a child or children is pull out method, withdrawal method or coitus interruptus method. I have also talked about it वो वाले वीडियो में, and there are large number of couples who practice this. I personally know few of them. So I'm not saying I'm with or against it, but with this you have to surely practice the fertility awareness method and tracking your ovulatory cycles so you won't end up into the emergency pregnancy situations. So you make sure कि आप वो वाला वीडियो देख ही ले, ठीक है? Moving on to the third type of contraception, that is for female. That is what we called as injection antara government setup में and injection depo provera private setup में. That is available at the price of 150 रुपीज़, बट आपको खुद से कभी नहीं लेना है. पीरियड्स आ जाने के 5 से 7 दिनों के दौरान लेना है. इससे कुछ लेडीज़ को ऐसी दिक्कतें आती हैं कि इनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या बीच बीच में स्पॉटिंग होती है, या फिर 3 महीने तक पीरियड्स आते ही नहीं हैं, या फिर थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, पिंपल्स. दैट इज़ ऑल अकर्स बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ इंजेक्शन, मतलब कि ड्रग प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ऐसा होता है. बट द इफेक्टिवनेस स्टैंड्स एट 98 to 99%. बट अगेन यू ओनली हैव टू टेक इट after consulting your doctor. Moving on to the fourth type of contraceptive method, that is again for female. अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी सारी नाइंसाफ़ी क्यों है, सब कुछ औरतों के लिए ही क्यों है, बट इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है? ये नाइंसाफ़ी नहीं है. तो क्या होता है कि एवरी सिंगल मंथ हमारी राइट या लेफ़्ट दोनों में से एक ओवरी में 1 या 2 अंडे बनते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इफ़ दैट अंडा इज़ गोइंग टू मीट अ स्पर्म वी आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट. बट हमारे जो मेल होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता. दे कुड प्रोड्यूस मिलियंस एंड मिलियंस इन नंबर ऑफ स्पर्म. तो अभी 1 या 2 को टैकल करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू मिलियंस, एंड दैट इज़ वाई वी हैव more amount of female contraceptive options as compared to male. Talking about copper-T, there are different types of copper-Ts are available. वो 3 साल, 5 साल या 10 सालों के लिए आप लगा सकते हो. अगेन आप खुद से नहीं लगा सकते, डॉक्टर का कंसल्टेशन इज़ मैंडेटरी. पीरियड्स आ जाने के 5 से 7 दिनों के दौरान आपको जाना है. दैट इज़ लाइक अ माइनर प्रोसीजर. 2 मिनट ही लगता है. लिटिल टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ पेन होता है इसमें. डॉक्टर विल गेट इट इंसर्टेड फ्रॉम योर वजाइना इनटू योर यूट्रस. और क्या होता है कि कॉपर की वजह से दैट कॉपर इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी इनसाइड द यूट्रस. वो आपके एग को और स्पर्म को मिलने नहीं देगा, एंड दैट इज़ हाउ द कॉपर टी इज़ गोइंग टू वर्क एट द एफिकेसी ऑफ 99 to 100% इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो अगर 1000 लोग कॉपर टी लगाते हैं तो देर आर फेलियर रेट ऑफ ओनली 3 to 4 मैक्सिमम. ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द हाईली इफ़ेक्टिव मेथड. कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कॉपर टी लगाने के बाद दैट थ्रेड, तो कॉपर टी के एंड पे नायलॉन ऐसा थ्रेड जैसा होता है. आई एम इंसर्टिंग एन इमेज अबव ऑल्सो सो यू कुड सी इट. सो वो थ्रेड की वजह से थोड़ा इचिंग या रैशेस जैसा होता है.
सो इफ़ यू फील सच सिचुएशन, आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो अच्छे से थ्रेड कट करके देंगे. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज़ बिकॉज ऑफ द कॉपर्टी एंड दैट फॉरेन एनवायरनमेंट दैट हैज़ बिन क्रिएटेड इनसाइड योर यूट्रस, 1, 2 या 3 महीने तक थोड़े पीरियड्स आपके इरेगुलर या हैवी फ्लो हो सकता है, पीरियड्स में थोड़ा ज़्यादा दर्द हो सकता है. सो इट वुड टेक सम टाइम टू एडजस्ट इनसाइड योर यूट्रस. बट ऐसा हो रहा है कि आपको रिलेशंस रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है या फिर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन डोंट सफ़र इन साइलेंस. देयर आर अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू. आप आपके डॉक्टर के पास जाके वो निकलवा भी सकते हो. नाउ व्हेन इट कम्स टू कॉपर्टी, देयर आर सो मैनी मिसकंसेप्शंस आर फ्लोटिंग कि वो लगाने से मोटे हो जाते हैं या उसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक जाती है या फिर वो कलेजे पे जाके चिपक जाती है या फिर वो खुद से निकल जाती है, मोटापा, बाल गिरना, यू नेम इट. बट दैट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में कोई जानकारी चाहिए, यू कुड ऑलवेज रीच आउट टू मी वाया द वेबसाइट, या फिर आप अपने नज़दीक में कोई डॉक्टर से जाके भी कंसल्टेशन ले सकते हो. और अगर वो आपको सेट नहीं होती है, देन दैट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि ये 3 साल की है तो आप 3 साल को आप तब तक रखना ही पड़ेगा. यू कैन ऑलवेज गेट इट रिमूव्ड इन बिटवीन टू. अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो कॉपर्टी गवर्नमेंट सेटअप में फ्री में लगाई जाती है और प्राइवेट सेटअप में आई गेस इट कॉस्ट अराउंड 500 to 700 to 1000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कॉपर्टी. Sorry for the background noise and thank you for bearing it with me. Moving on to fifth type of method, that is for male and female both. That is what we call as a vasectomy for male and tubectomy or a tubal ligation for female. सो अगर मेल की हम सबसे पहले बात करें, सो दैट इज़ प्रोसीजर वी कॉल्ड एज नो स्कैल्पेल वेजेक्टोमी. इसमें क्या होता है कि लोकल एनेस्थेशिया या फिर शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया में आपको सुला के स्पर्म प्रोडक्शन जिस नलियों में होता है, दे पुट एन इंसिजन अबव द सेम और उसको काट के लाइगेट कर देते हैं. सो इट माइट टेक अप टू 3 months. तो उसके दौरान पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, मतलब आपकी सीमेन में जो स्पर्म्स दिखते हैं वो आना बंद हो जाता है और तब तक आपको कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट कि काम पे कब जा सकते हो, पेन कितना होता है. सो दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल सर्जिकल माइनर प्रोसीजर ओनली. आप 5 से 7 दिनों में आराम से अपनी रूटीन एक्टिविटी फॉलो कर सकते हो. शायद सोच रहे होंगे कि वेजेक्टोमी करवाने के बाद भी कॉन्डम 3 महीने तक क्यों यूज़ करना होता है. So there is a difference between a sperm and a semen. So sperm is like a male gamete, उसकी वजह से pregnancy रुकती है, and semen is a combination of prostatic fluid, seminal fluid along with the sperm. So vasectomy करने के बाद भी semen तो आएगा ही, सिर्फ उसमें sperm नहीं आएगा. So that is why that procedure could take up to 3 months. तो उसके दौरान जब तक आप डॉक्टर से कंफर्म नहीं करते, आपको अलग एक दूसरे फॉर्म का कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ज़रूरी होता है. मूविंग ऑन टू द परमानेंट स्टेरिलाइजेशन ऑफ फीमेल, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ ट्यूबल लाइगेशन. नाउ ये लैप्रोस्कोपी से भी होता है और पेट खोल के भी होता है, डिलीवरी के बाद भी होता है, और जब हम सिजेरियन अगर कोई कारणों की वजह से करते हैं तो उसके दौरान भी ये हम कर सकते हैं. बट ये आपको आपके पार्टनर के साथ और आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप डिलीवरी के बाद करवाना चाहो या अगर कोई किसी चीज़ की वजह से आपकी वाइफ को ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि 9 महीनों के दौरान आपने ये डिस्कशन कर लिया हो आपकी वाइफ के साथ. नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्यूबेक्टोमी एंड वेजेक्टोमी, दीज आर द परमानेंट स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर. मतलब कि एक बार आपने ऑपरेशन करवा लिया तो करवा लिया. देयर आर नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी पोस्ट दैट. आई शुड से वेरी लेस चांसेस अगर फेलियर हुआ तो. ऑफ कोर्स देर इज़ अ सर्जरी ऑफ रिवर्सल दैट इज़ अवेलेबल, बट आई एम श्योर कि एक बार आपने डिसीजन ले लिया, बंद करवा लिया, इतना बड़ा ऑपरेशन करवा लिया, फिर उसके बाद आप फिर से वो खुलवा के फिर से प्रेगनेंसी और वो सारी उलझनों में पड़ना नहीं चाहेंगे. सो दैट इज़ वाई आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो या फिर जब प्रेग्नेंट हो गए होते हो, देन यू मेक श्योर दैट यू हैव दीज टाइप्स ऑफ कन्वर्जेशंस विथ योर पार्टनर, या फिर आपके घर में फैमिली में, इंटीमेट फैमिली में कोई डॉक्टर है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, लाइक व्हाट आर योर गोल्स विद दिस प्रेगनेंसी और इसके बाद आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है. सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू talk about these things to your doctor and then you take that informed decision. ऐसा नहीं होता है कि आप डॉक्टर के पास गए और तुरंत ही हो गया.
you have to really sit with your partner, your family members and everything and discuss these things in real time. That is very very important. अगेन इसमें जो होता है दैट इज़ लाइक अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर ओनली. 2 से 3 दिनों में आप अच्छी तरह से अपना सारा काम कर पाओगे. ओव्यूलेशन या मंथली ब्लीडिंग पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल ही रहेगी. सिर्फ आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, दैट इज़ द ओनली थिंग. Even with that, the options of reversal and IVF are still there, but I think I should not go into that much amount of detail into this video. Moving on to the last part, मैंने जानबूझ के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की और अबॉर्शन पिल्स की बात यहाँ पे नहीं की है, बट दोज आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल टू that contains hormonal substance into them and that could have little to minimal to moderate amount of effects on your cycles. So वो आपको हमेशा ही आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके लेनी चाहिए. एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर अ परफेक्ट सिचुएशन एंड एनवायरमेंट टू रिकॉर्ड, जिसमें मैंने 2-3 घंटे का वेट किया, बट देयर वॉज अ कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन बिहाइंड दिस कर्टेन एंड किड्स आर प्लेइंग बिहाइंड दिस कर्टेन. एंड ऑल्सो सनसेट हो चुका है. आई एम रिकॉर्डिंग ऑन सैटरडे 6:30 PM. अभी एडिट करना और कल अपलोड करना भी बाकी है. सो सम हाउ आई एम मैनेजिंग टाइम कि मैं अपने स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें कर पाऊँ. Of course, I am the only one who is managing the edits and shooting and writing script and every single thing behind the scenes. So make sure that you support. Thank you so much for being here. I really appreciate your presence and I will see you in my next one for sure. Bye. Take care.